Dear students of BTech second year, I am Dr. Rohit Pasai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chamini Devi Group of Institution Indore. I welcome to you for today fourth lecture based on example on Euler's method. Rule number 7. Ganesh, good day. Why are you not coming yet? Regular classes? अभी तक की क्लासेस में क्यों नहीं आ रहे थे? गणेश, Ganesh, rule number 14. Talk to me. Are you listen to me, Ganesh? मैंने अनम्यूट नहीं किया है. गणेश, बात करिए. गणेश, दुडवे, roll number 56. Ganesh, am I audible? Vishnu Chauhan, am I audible? Himanshu Gate, am I audible? Yes, sir. ये गणेश ढूंढवे बात नहीं कर रहा मेरे से, उसको जरा कॉल करके बोलिए. सर मेरे पास नंबर नहीं. अरे ग्रुप पे सभी के नंबर रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे. इसने ईयरफोन लगा के बंद कर रखा है अपना माइक, सुन नहीं रहा है. इसको बोलिए जरा. अभी अनम्यूट नहीं किया किसी को मैंने. जब अटेंडेंस पूरी हो जाएगी 10:05 के बाद मीट करूंगा सभी को अनम्यूट. रोल नंबर 29. अभी 6 मिनट बचे हैं क्लास स्टार्ट होने को. रोल नंबर 49. और चीजें सवाल. गौरव चौहान 15, 42 and 52.
19, 52, 26, गणेश। सर हाँ गणेश। हेलो सर। हेलो गणेश। यस सर। गणेश क्या बात है, क्लास में हाँ क्यों नहीं आ रहे हो बेटे? गणेश क्लास में रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो? सर आपकी वॉइस कट रही है सर। हेलो भाई मैं बोल रहा हूँ, आप रेगुलर क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? सर, मैं रिजॉइन होता हूँ सर, आवाज कट रही। मेरा आवाज तो पूरा, मैं आपको क्लियर सुन रहा हूँ। आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करिए। मेरा सिंपली ये पूछना है क्वेश्चन बेटा, रेगुलर क्यों नहीं आ रहे हो क्लास में? कोई जेन्युइन रीजन है तो राइट में मेल करो, मैसेज करो एचओडी सर को और मेरे को कॉपी में रखे कि हमारा ये जेन्युइन रीजन है, इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ऑफिशियली कुछ करो तो आपको कुछ पता लगेगा। जी 53, 31, 18, 38, सर 19, 35, 19 हो गया बेटे, 35 भी हो गया है, 41, सर 36, 36। रोल नंबर अभी ज्वाइन किया है तुमने? ओके, लग गया तुम्हारा। 36 का भी लग गया, 35 का भी हो गया है। ऋतिक शर्मा तुम्हारा भी हो गया है। यस गीते 57, सर 53 हो गया। 53 हो गया बेटा। सर सर 41, 49। 41 भी हो गया, 49 भी हो गया। मैं आपका अटेंडेंस लेके आपको एडमिट करता हूं। मैं आपको बोल चुका हूं। माकान 33, सुमित,
24. Okay, dear students, roll number 22. Seventeen. Dear students of BTech second year, I am Dr. Ravindra Parsai, Associate Professor of Mathematics, Engineering Science, Humanity Department at Chameli Devi Group of Institution Indore. I once again welcome to all of you. So our talk is based on the example on modified Euler method, modified Euler method as lecture number 4 on this unit number 3. Yes, yesterday we have seen what do you mean by modified Euler methods. Let me recall once again the formula, then I discuss the example. So this is our general problem, and by using this method, we first predict the value of as a solution of this differential equation, as we denote by yn plus 1. This is called predictor formula, as yn plus 1 equal to yn plus h f of xn yn. And then for finding this correction, so we use this corrector formula as for repeating odd times as yn plus 1 yn plus h by 2 f of xn yn plus f of xn plus 1 yn plus 1 of r minus 1. So r का मतलब है number of repetition or number of iteration, you can say that. One, two, three, four, up to n. As long as you are not getting the two times same answer, you just repeat this method. So let me, what do you mean by f of x? X and yn means f. F means whatever may be this differential equation of first order and first degree given. You have given the value of f of xy and you have the value of initial condition as x0, y0, and for finding the common difference, sometimes they will give the range. So accordingly you can select the h as a common difference, और जब आपको ये h की वैल्यू गिवन नहीं होगी तब अपनी चॉइस से आप वो कॉमन डिफरेंस सिलेक्ट कर सकते हैं. तो हमने कल प्रॉब्लम भी स्टार्ट किया था. ये था हमारा प्रॉब्लम. पहले वाले फार्मूले को अपन प्रेडिक्टर फार्मूला बोलते हैं, इसलिए क्योंकि हम उससे पहले प्रिडिक्ट करते हैं, मतलब रफ वैल्यू निकालते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं, और फिर इसको करेक्ट करने के लिए, करेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर आपके सामने करेक्शन का फार्मूला, जिसको मॉडिफाइड फार्मूला होता है, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसको हमने 3 नंबर से डिनोट किया हुआ है. तो सी द बाय एन एग्जांपल. तो कल मैंने आपको इसका एनालिसिस बताया था कि इस तरह का कोई भी एग्जांपल आपको गिवन होगा एग्जाम में, तो आपके पास
पहले आपको एनालिसिस करना होगा कि हमें कितने सोल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम में, मतलब मेथड को कितनी बार यूज करना है, रिपीट करना है। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। वही हम लोग इसका एनालिसिस आपको बताए थे। इसमें लिखा है आपको स्टेप्स दे रखी है 0.2। स्टेप्स का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो h की वैल्यू आपको 0.2 लेके इस x की वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है 0, यहाँ पर भी शो कर रखा है और यहाँ पर भी दे रखा है, ये इंटरवल दे रखा है। इस इंटरवल में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है, मतलब y की वैल्यू निकालना है, उतनी y की वैल्यू निकालना है। तो हमें डिसाइड करने के लिए कि कितनी y की वैल्यू निकालना है, तो उसके लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है एग्जामिनर ने। पहला है 0, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग तो वैल्यू आपको मालूम है y0। फिर इसके बाद आप इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाएंगे 0.2 कब तक जोड़ेंगे, जब तक ये एंड वैल्यू नहीं आ जाती। तो वही हमने अगली नेक्स्ट स्टेप में वही किया है, आपके सामने इसी बात का एनालिसिस किया है और इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है। तो पहले x की वैल्यू डिसाइड करो, x के कॉरस्पॉन्डिंग फिर हम लोग y की वैल्यू प्रेडिक्ट करेंगे, वो वैल्यू डिसाइड होगी। सो आपके पास सबसे पहले इनिशियल वैल्यू मतलब x0 होती है, पहले जो भी वैल्यू होगी उसको x0 से डिनोट करेंगे। जो भी वैल्यू आपके पास पहले होगी उसको आप लोग x0 से डिनोट करेंगे। कर्तव्य सिंह एंड रजत मुकाती 38। रजत तुम्हारा पहले कर चुका हूं मैं। ओके, तो x की वैल्यू डिसाइड करने का हमने तरकीब बात आपको बताई है। सबसे पहले जो वैल्यू दे रही होती है वो x0 की होती है और यहाँ पर भी आपको ये रेंज दे रखी है x की। सबसे शुरुआत वैल्यू जो भी होगी वो इससे मैच होगी, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करना है तो x0, फिर x1 निकालने के लिए आपने को इसमें x0 में h जोड़ना है। h का आपको दे रखा है कॉमन डिफरेंस, मतलब स्टेप्स मतलब कॉमन डिफरेंस 0.2 दे रखा है, तो इसमें 0.2 जोड़ो, 0 में 0.2 जोड़ो, कितना आएगा 0.2। फिर इसमें 0.2 जोड़ो, कब तक जोड़ते जाएंगे कॉमन डिफरेंस, तब तक आप जब तक एज लॉन्ग एज यू आर नॉट गेटिंग दिस एंड वैल्यू, ये रही एंड वैल्यू 0.6, तो 0.6 तक जाना है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमको कहां तक जाना होता था, 1 तक, 1 पे वैल्यू निकाला थी ना अपने को, तो हमने कॉमन डिफरेंस को ऐड करते गए थे और 1 तक हम लोग उसको ऐड करते रहते, जब तक 1 नहीं मिल जाता तब तक उतनी बार हम उसको रिपीट करते रहते थे। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे y की वैल्यू डिसाइड होगी कि उतनी y की वैल्यू हमें निकालना है, उतने सोल्यूशन निकालना है इस प्रॉब्लम के। तो ये आपके सामने पहला सोल्यूशन हमेशा दिया होगा प्रॉब्लम में, ये रहा आपके पास x0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो y0 होती है। तो पहला सोल्यूशन दिया हुआ है, दूसरा सोल्यूशन नहीं दिया है, तीसरा सोल्यूशन नहीं दिया है, चौथा सोल्यूशन नहीं दिया है। तो अभी हमारे पास 1 2 3 सोल्यूशन अननोन है, तो ये तीनों सोल्यूशन हम एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। आप एक को समझ जाएंगे, दोनों बाकी 2 सोल्यूशन आप अपने आप निकाल सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर नोट्स में पीपीटी में कैलकुलेट करके आपको बताया है। आप खुद सेल्फ एलोकेशन 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो अब हम अगली स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन को करने की, इस मेथड को समझने की कंप्लीट हो गई। अब दूसरी स्टेप जो आएगी वो है फार्मूला की। सबसे पहले हम प्रेडिक्टिव फार्मूला लिखेंगे, फिर मॉडिफाइड फार्मूला लिखेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। एम आई राइट विष्णु चौहान? सभी को समझ में आया स्टेप? ये प्रॉब्लम करने की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसी जितनी भी मेथड्स है उन सभी में ये कॉमन रहेगा, ये स्टेप कॉमन रहती है। पहले हमें डिसाइड करना होता है कि कितनी वैल्यूज हमें निकालना है। आ रहे हैं हम अगली स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम प्रेडिक्टर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इसके बाद मॉडिफाइड मेथड से मॉडिफाइड फार्मूला लिखेंगे, जिसको करेक्टर फार्मूला या मॉडिफाइड फार्मूला बोलते हैं। इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। Where r is the number of iteration, ये तो अभी आपको पहले मैंने इस बात को दोहराया है, समझाया है। अब हमें सबसे पहले जो वैल्यू निकालना है वो y1 की निकालना है। हम पहले डिसाइड कर चुके हैं हमें क्या क्या निकालना है, y1 y2 y3 निकालना है। तो पहले हम y1 की करेक्ट वैल्यू निकालेंगे, ओके, फिर इसके बाद y2 पे जंप लगाएंगे। ओके, तो y1 की वैल्यू निकालने के लिए आप बताएंगे, आप कोई भी बता सकता है पहले वाले फार्मूले में इन की वैल्यू क्या रखें जिससे कि हमें y1 मिल जाए। श्रेयांश बताओ यहाँ पर n की वैल्यू क्या रखें
जिससे हमें y1 मिल जाएगा फार्मूला 1 में। 1 1 नहीं बेटे, 0 0 सॉरी जीरो 0 रखना पड़ेगा तभी, क्योंकि हाँ, n 0 की जो वैल्यू यहाँ पर जो सफिक्स है वो n+1 से स्टार्ट हो रहा है। यदि फार्मूला n से स्टार्ट हो रहा है तो आप फिर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, ठीक है। y1 निकाला है तो 1 रखेंगे। तो कुछ बुक्स ने इसमें फार्मूले में यहाँ पर n लिखा है तो इधर n-1 कर दिया है, एक ही बात है। हमें जो आप हमारा ऑब्जेक्टिव है y1 निकालने का, तो y1 निकालने के लिए इस सिंबल में हमें क्या रखें, तो n की वैल्यू 0 रखना पड़ेगी। तो वही किया हमने, n बराबर 0 रखा है फार्मूला 1 में। उससे पहले हमने ये फार्मूले से ये डिफाइन किया इस फार्मूले को, y1 इक्वल टू y0 प्लस h इंटू एफ ऑफ x0 y0 इक्वल टू का साइन एज इट इज रखो। आप y0 की क्या वैल्यू दे रखी है आपको, 1 दे रखी है तो 1 रखो। h की वैल्यू आपको ये भी दे रखी है 0.2 दे रखी है, और एफ ऑफ एक्स वाई आपका फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन में, वो है x प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ y0। इसका ब्रैकेट क्लोज है, यहाँ पर पास में इसका ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज है तो अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए x0 प्लस मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ y0। मॉड का मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब आपको पॉजिटिव ही लेना है, आपको नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको कैलकुलेटर से एड ऑन करोगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ोगे तो आपके पास जो हो जाएगा इसमें 1.2 आ जाएगा आपका। तो y1 की वैल्यू आपकी आएगी, प्रेडिक्ट जो होगी वो 1.2 है। अब इस वैल्यू को अपन करेक्ट करेंगे करेक्टर फार्मूला से। तो सबसे पहले हम लोग ये आपका करेक्टर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो बताइए हमें n को करेक्ट करना है, y1 को करेक्ट करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर n की वैल्यू आप लोग डिसाइड करेंगे और फिर r की वैल्यू इसमें देते जाएंगे। So y1 thus obtained is improved or modified as follows. तो r इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, r इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार फार्मूला लगा रहे हैं तो r की वैल्यू 1 होगी। जब दूसरी बार लगाओगे तो 2 रखोगे। कहिए मुकेश। ओके, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। पहली बार चूंकि करेक्शन का फार्मूला लगा रहे हैं तो पहला इटरेशन कहलाता है, तो पहले इटरेशन के लिए r की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी, और चूंकि y1 को करेक्ट करना चाहते हैं तो n की वैल्यू 0 रखना पड़ेगी। तो वही किया अपन ने फार्मूला 2 में। जरा देखिए क्या फार्मूला आपको मिलेगा। ये स्टेप आप भी कर सकते हैं, इतनी कठिन नहीं है। ये रहा आपके सामने पहली बार करेक्शन का फार्मूला, ये बनेगा आपका y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 की पावर 0। y1 की पावर 0 का मतलब है जो अभी अपन ने सॉल्यूशन निकाला है, अभी जो y1 की वैल्यू निकाली है वो है आपकी y1, ठीक है। y1 ऑफ 0 से उसको बोलते हैं। रखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए सभी लोग अपने नोटबुक में, और यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 y0 की वैल्यू 1 है और h की वैल्यू 0.2 है, 0.2 है। f ऑफ x0 y0 का जो फंक्शन दिया उसमें x0 की वैल्यू प्लस अंडर मॉड ऑफ अंडर रूट ऑफ y0 प्लस x1। यहाँ पर जहां पर x और y है उसकी जगह x1 y1 रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर इसके बाद अगली स्टेप में इनकी न्यूमेरिक वैल्यू रखेंगे, ये फार्मूला करेक्ट होगा। तो आपके सामने x0 की वैल्यू आपको 0 दे रखी है, y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, x1 की वैल्यू आपने ऊपर पहले ले चुके हैं 0.2 है, और y1 वैल्यू 0 जो अभी हमने y1 का मान निकाला है, जो पहला सोल्यूशन निकाला है जो कि इनकरेक्ट है, उसकी वैल्यू 1.2 है। अब हम इसको इस फॉर्मूले से करेक्ट करने जा रहे हैं। अब इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, नॉर्मली कैलकुलेट कर लीजिए। अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि y1 ऑफ 0 का मतलब y1 है, 1.2 है, जो अभी अपन ने पहले के स्टेप पे निकाला है, फाइंड आउट किया है। फिर इसके बाद हमें, चूंकि ये जो पहली बार में आंसर मिलता है इतना करेक्ट नहीं होता है, इसलिए हमें इसको दोबारा रिपीट करना होता है। तो दोबारा रिपीट करने के लिए r की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू तो 0 रहेगी। जब तक कि दो सेम आंसर नहीं आ जाते उतनी बार हमें इस करेक्शन फार्मूले को अप्लाई करना होगा। ये देखिए जनाब, y1 ऑफ 2 नीचे वाली वैल्यू सब वही रहेगी, बस केवल सुपरस्क्रिप्ट में करेक्शन होगा। यहाँ 0 था तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर
1 था तो 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू 2 है, मतलब सेकंड बार रिपीट कर रहे हैं इसलिए 2 आ जाएगा। और यहाँ पर r -1 है तो 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। बाकी सब कुछ एज इट इज है, मैकेनिज्म पूरा सेम है। y0 की जगह y0 रखिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपके पास ये जो वैल्यू मिलेगी आपकी दूसरी बार फॉर्मूला लगाने के बाद वो आएगी 1.2909। क्योंकि ये पहले वाली वैल्यू से मैच नहीं हो रही है तो इसलिए हमें और एक बार इस फार्मूले को, करेक्शन फार्मूले को रिपीट करना होगा, इसलिए इसको थर्ड इटरेशन बोलते हैं। तीसरी बार अप्लाई करेंगे तो r की वैल्यू 3 हो जाएगी, n की वैल्यू तो वही फिक्स रहेगी। ये आपका y1 का तीसरी बार में करेक्शन होगा। करेक्शन का पहले फार्मूला लिखेंगे, यहाँ पर r की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर r -1 है तो 3 में से गया 2 रह जाएगा। ये वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आपके सामने ये वैल्यू आएगी 1.2309। आप देखिए यहाँ पर y2, y1 ऑफ 2 एंड y1 ऑफ 3 दोनों की वैल्यू सेम आने लगी है। अब इसके बाद इस फॉर्मूले को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सेम आंसर आ गए हैं, तो इसका मतलब अब हम रुक जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो इस तरह से हम मॉडिफाइड यूलर मेथड को नंबर ऑफ स्टेप्स में अप्लाई करेंगे और इसको फाइंड आउट करेंगे, बेटर अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन करेंगे। वही हमने आगे डिक्टेट कर दिया है, hence from above since y1 of 2 is equivalent to y1 of 3, इसका मतलब जो आपका पहला सॉल्यूशन आ रहा है y1 की वैल्यू आ रही है वो आएगी 1.2309। अब हम नेक्स्ट y2 की वैल्यू निकालने के लिए यही मेथड वापस लगाएंगे, पहले प्रेडिक्टर फार्मूला लगाएंगे और फिर इसके बाद वो फार्मूला लगाएंगे। हाँ बोलिए श्रेयांश। सर ये r क्या पावर है क्या? r r पावर है क्या सर? r का मतलब है इटरेशंस, कितनी बार आप वो मेथड करेक्शन का फार्मूला रिपीट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इटरेशन। देखिए जरा पिछली स्लाइड की तरफ, r डिनोट्स नंबर ऑफ इटरेशन। इटरेशन को ही मैंने आपको सिंपल भाषा में कहा है कि आप इस करेक्शन वाले फार्मूले को कितनी बार रिपीट करते हैं। एक बार कर रहे हैं, एक बार करते हैं तो एक फर्स्ट इटरेशन, दूसरी बार करते हैं तो 2 इटरेशन, उसको कहा जाता है एडवांस भाषा में। ठीक है, एम राइट? ओके सर। तो अभी आपने y1 की जो वैल्यू निकाली थी पहले इस फॉर्मूले से, ये आप मेरे लेजर पॉइंटर को ध्यान दीजिए, जो भी वैल्यू निकालना हमें इस फॉर्मूले से निकालना है, इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना मतलब कैलकुलेट करना, इवेल्युएट करना, और करेक्ट कर फार्मूला मतलब जिसको अपन इससे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले y1 कैलकुलेट करने की कोशिश करी है, तो पहले अपन ने यहाँ पर y1 निकाल लिया पहले वाले फार्मूले से। अब इसको करेक्ट करने के लिए हमने करेक्शन का फार्मूला अप्लाई किया है, तो इसमें क्या वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आपने को y1 को करेक्ट करना है तो n की वैल्यू तो फिक्स हो गई 0, इस फॉर्मूले में 0 ही रखना है, और r की वैल्यू आपकी 1 2 3 4, जब तक कि 2 सेम आंसर नहीं आते उतनी बार हमें इस फॉर्मूले को रिपीट करना होता है, उतने इटरेशन करना पड़ेंगे। कहने का मतलब यदि टेक्निकल भाषा में कहें तो उतने इटरेशन करना पड़ेंगे, सिंपल भाषा में रिपीटेशन बोलते हैं। तो वही हमने नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, ये आपके सामने, जिसको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। ये पहली बार इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन के लिए r की वैल्यू 1 रखी है, n की वैल्यू 0 दी है, ये तो फिक्स है। इन फार्मूला 2 में इस तरह से आपका ये फार्मूला कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसमें सब्सिक्वेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये वैल्यू आपकी न्यूमेरिक वैल्यू 1.23 कुछ आती है। फिर हमने इसको सेकंड टाइम रिपीट किया है, क्योंकि पहली बार में आप आंसर 4 डेसिमल प्लेस तक सेम नहीं आता है, इसलिए हमें आगे बढ़ना होता है। इसलिए हमने आपके सामने इसको तीसरी बार रिपीट करके बताया है। दूसरी बार और तीसरी बार रिपीट करने से आंसर सेम आने लगा है, करेक्ट टू 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो इसलिए अब हम रुक जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा y1 का करेक्ट आंसर है, y1 की वैल्यू है 1.2309। अब हमें
फिर से हम इस मेथड को रिपीट करके सेकंड टाइम बता रहे हैं आपको, बचे हुए टाइम में बताएंगे आप सभी लोग। उसके पहले हम कंक्लूड कर लेंगे क्योंकि ये वैल्यू आगे काम आएगी। x1 की फाइनल वैल्यू है 0.2 और y1 की फाइनल वैल्यू जो अभी हमने करेक्शन फार्मूला से निकाली है वो 1.2309 है। आप y2 निकालने के लिए बताओ क्या रखोगे पहले फार्मूले में? गौरव चौहान आप बताओ, कोई भी एक बताएगा। यूलर का प्रेडिक्टर फार्मूला मतलब यूलर की मेथड फिर से अप्लाई होगी, तो उसके लिए y2 निकालना है तो इनकी वैल्यू 1 रखना पड़ेगी बेटे। प्रेडिक्टर फार्मूला 1 नंबर 1 जिसको बोला है रखिए उसमें वैल्यू और बताइए आपको ये फार्मूला आपको मिल रहा है। y2 इक्वल टू आएगा y1 प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 y1 इक्वल टू आएगा 1.2303। ये वैल्यू इसमें सेम तरीके से फार्मूले में रख देंगे तो आपकी ये जो y2 की वैल्यू आएगी वो 1.49279 5 प्लेस ऑफ डेसिमल तक वैल्यू को आपको लेना है। ठीक है, अभी ये चूंकि आंसर इतना करेक्ट नहीं है, चूंकि क्वेश्चन में मॉडिफाइड मेथड बोला है इसलिए हमें इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करना होगा। तो करेक्ट करने के लिए हम बताएंगे, आप लोग बताएंगे। अब आप करेक्शन फार्मूला में n की वैल्यू और r की वैल्यू जरा डिसाइड करो। चूंकि पहली बार लगा रहे हो तो r की वैल्यू 1 होगी और n की वैल्यू चूंकि आपके पास आपको y2 करना है तो उस फार्मूले में n की वैल्यू 1 रखना पड़ेगी। तो वही हमने कहा है करेक्टर फार्मूले में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है कि y2 की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये बात वापस लिखी है, r की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू भी 1 रखेंगे। तो आपका पहली बार में करेक्शन फार्मूला होगा y2 ऑफ 1 इक्वल टू, या फर्स्ट इटरेशन बोलो एक ही बात है, y1 इक्वल टू h/2 f ऑफ x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2। अब वैल्यू आप सभी लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें न्यूमेरिक का आंसर मिलेगा और फिर इसके बाद हम इसको सेकंड टाइम रिपीट करेंगे क्योंकि ये जो आंसर आता है वो पहली बार में नहीं आ पाता है इतना करेक्ट, इसलिए हमें दोबारा रिपीट करना होती है। तो r की वैल्यू 2 आती है, n की वैल्यू 1 रखना होती है। ये दूसरी बार रिपीट करने पर 1.525297 आता है आपका वैल्यू। और फिर इसके बाद जब हम तीसरी बार करने जाते हैं इस मेथड को रिपीट तो आपके सामने ये आपकी वैल्यूज 1.5253। हाँ, तो इसको आप लोग 53 ले सकते हैं क्योंकि 9 आ रहा है तो उसको 53 माना जा सकता है। तो अब आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये दूसरा आंसर आ जाएगा वही हमने, लेकिन हमने एक बार और करके बताया है। आप चाहें तो पिछले बार में ही आप इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं, चौथी बार करने की जरूरत नहीं। आप दूसरी और तीसरी बार में भी आंसर कंक्लूड कर सकते हैं, उसको राउंड ऑफ मान के 1.52535 ले सकते हैं। तो अब आप जाके हमारे पास जो x2 की y2 की जो वैल्यू आई है वो हमारी 1.52535 आई है, जो कि नेक्स्ट एक और वैल्यू हमें निकालना है क्योंकि 0.4 तक जाना है ना हमें, तो हमें y3 तक जाना है। तो इसलिए हम इसी मेथड को फिर से रिपीट करेंगे तीसरी बार। तो सबसे पहले अपन प्रेडिक्टर फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो प्रेडिक्टर फार्मूला से चूंकि y3 निकालना है तो n की वैल्यू डिसाइड होगी 2। यही हमने फार्मूला 1 में रखा है। तो इधर आ रहा है y2 प्लस h इंटू एफ ऑफ x2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपके पास ये जो वैल्यू आएगी y3 की जो इनकरेक्ट वैल्यू आएगी वो 1.85236 आएगी 5 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। अब हमें इसको करेक्शन फार्मूला से करेक्ट करना है सेम तरीके से, कोई डिफरेंट तरीका नहीं है। अब चूंकि y3 को करेक्ट करना है, चूंकि पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो r की वैल्यू तो 1 होगी और n की वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगी, 2 रखना पड़ेगी। n की वैल्यू 2 है, ये फिक्स है, वही रहेगी क्योंकि आप y3 को करेक्ट कर रहे हो। रखिए n की वैल्यू 2। यस, अपना माइक अनम्यूट करिए। अपना माइक को अनम्यूट करिए।
पहली बार अपने करेक्शन फार्मूला लगाया तो y3 ऑफ 1 आएगा। अभी जीरो का मतलब होता है जो अभी आपने रिसेंटली y3 की वैल्यू निकाली है, इनकरेक्ट वैल्यू निकाली है, उसको यहाँ पर यूटिलाइज करना है। वही हमने यहाँ पर लिखी भी है। ये वैल्यू आप लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका पहली बार में y3 का करेक्ट मान आएगा 1.88496। क्योंकि ये एक ही वैल्यू है तो हमारे पास कोई कंपेयर करने के लिए दूसरी वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें दोबारा रिपीट करना पड़ेगा इस करेक्शन फार्मूला को। तो वही किया हमने। सिमिलरली बाय पुटिंग r इक्वल टू 2, 3 and 4 and n इक्वल टू 2, सेम तरीके से आप लोग रिपीट करिएगा। तो आप जब दूसरी बार रिपीट करेंगे तो y3 का मान आएगा 188615। एक प्लेस तक सेम आया यदि y3 ऑफ 1 और इसको चेक करेंगे तो आपके पास 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सेम है। हमें कम से कम 4 प्लेस ऑफ डेसिमल तक सेम होना चाहिए, तो इसलिए हमने तीसरी बार किया और चौथी बार किया, इस फॉर्मूले को, करेक्शन फार्मूले को यूज किया, अप्लाई किया। तो हमारे पास ये आपके पास तीसरी और चौथी बार में जो आंसर आ रहा है y3 का वो आ रहा है 1.88619। यहाँ पर है 1.88619। तो आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू आपकी सेम होने लगी है। इसका मतलब अब आप रुक सकते हैं और अपना तीसरा आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। वही हमने कंक्लूड किया है कि x3 की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 0.6 पर y का जो फाइनल मान है, फाइनल सोल्यूशन है y3 जो है थर्ड स्टेप में वो 1.88619 है। इस तरह से आप लोग इस एक मॉडिफाइड यूलर मॉडिफाइड मेथड को यूज कर सकते हैं। जितनी डिमांड होगी एग्जामिनर की, जितनी वैल्यू पूछेगा उतनी बार में इस मेथड को अप्लाई करना होगा। Yes, anybody have any doubt? Thank you very much. और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। प्रोसीजर सभी को मैंने इसलिए 3 बार समझाया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में 3 वैल्यू निकाल के बताई आपको। एक वैल्यू की वजह 3 वैल्यू इसलिए बताई ताकि आपको इस मेथड को अप्लाई करना समझ में आ जाए। यदि एक बार ही अप्लाई करने का बोलता, आपको एग्जामिनर केवल 0.2 पे वैल्यू पूछता। सपोज आपको इस क्वेश्चन में, यस सर। Sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर। टेल मी I सर। think students are, it's a really wonderful lecture, sir, and I think all the students are, having the pen and paper with them. So Yes, sir. equally, we need to find out from the next classes either they are writing or not. So we will ask randomly that they have to put their videos on. So we will make one coordinator. Yes, So sir. we will randomly we can check it either Yes, they are sir. copying it or not. यस सर। It's a mathematical subject. राइट सर। नाइस सर। So next time we will provide a coordinator. Then we will ask them to turn on their videos so that we can check that either they are writing or not. यस सर। नाइस सर। Right, sir. Okay, sir. Thank you. Good day, sir. Yes, dear student, anybody have any doubt? In remaining time, I want to recall one thing. Yeah. Yes. Suppose the question mentioned solve using Euler modified method, solve numerically the equation this subject to this condition. This is always given.